A sizable portion of the population of Madhya Pradesh lives in villages. Agriculture is the main source of livelihood for the rural families dwelling in forest areas and far-off regions. It is challenging for them to nurse their families in absence of basic needs. Limited income makes it more difficult for them to feed their families. Many a time, their painstaking efforts go waste and they fall into troubles. Sometimes they are forced to migrate in search of livelihood options. A large number of rural families live in tribal pockets. In the past, life was tough in these remote tribal regions. Though farmers have land resource, but they could not harness this for want of irrigation facilities. It is said that darkness does not stay long and new dawn has to spread its light soon. It happened with the support of Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project. New horizons opened up before them. संकुल कराल में कुल 22 ग्राम हैं, जिसमें 2085 कृषकों को कृषि से जोड़ा गया है, जो नकदी फसलों के लिए कृषि के तरफ उनको बढ़ाया है, जिसमें सब्जी मुख्य रूप से भिंडी, टमाटर, आलू, मिर्च, बैगन, ऐसी नकदी फसलें, धनिया, मूंग की खेती ग्रीष्मकाल में इससे जोड़ा गया है, जिससे उनको रोज़ के पैसा नगद प्राप्त हो और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। पूरे ज़िले में 23,000 कृषक मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से सब्जी खेती से जोड़े गए हैं और कुल 234 ग्रामों में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना संचालित है, जिसमें ग्रामीण दूर दराज के लोगों को कृषि, खेती, अन्य व्यवसाय, आमदनी के अन्य आयजनित साधनों से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। The gloomy days vanished. The same untapped land resource yielded a bumper crop. वर्तमान में आजीविका परियोजना के ही सहयोग से किसान उत्पादन सहकारी समिति का काम कर रहा हूँ। जो ये सारे सब्जी के बीज हैं और धान का बीज है, ये सब ब्रीडर बीज प्राप्त हुआ था और ये आधार बीज हैं जिन्हें हम और हमारे समिति के लोग बनाते हैं और आजीविका परियोजना आने से हम कृषकों को मानव बनने का अधिकार मिला। The Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project exposed the poor farming community not only to the latest knowledge in farming, but also to the trading skills so that they can get best prices. सब्जी इकट्ठा करते हैं, लगाते हैं और इसको ले करके इकट्ठा करके बस में भेज देते हैं आजीविका फ्रेश में ही शहडोल। वहाँ से सही दाम पे सही बिक्री हो जाता है और पैसा भी सही समय पे वहाँ से भेज देते हैं, मिल जाता है। The change in the project villages is clearly visible. Villages of Alirajpur, Jhabua, Dhar, Badwani, Mandla, Shahdol, Dindori and Anuppur exhibit a positive change. The healthy crops standing tall and smiling faces are expressive of the economic prosperity. The poor villagers express their joy enthusiastically. मैं गांव में सब्जी खेती करता हूं और सब्जी उगाकर जो है मैं गांव में बाज़ारों में बेचता रहा, लेकिन वहां बहुत कम रेट में बिकता रहा। फिर जब आजीविका फ्रेश खुले अक्टूबर 2011 में, फिर साहब लोग मेरे गांव गए, फिर बताए, फिर मैं यहां बेचना शुरू किया। तो यहां जो है बाज़ार से 1 रुपये प्रति किलो जो है तेज़ रेट मिलता है और मुझे आने जाने का किराया भाड़ा भी आजीविका फ्रेश से मिलता है। Before intervention of the project, these poor farmers were ignorant about improved farming and modern technology. Sometimes they used to get reasonable farm output but had problems of finding markets. Access to market was difficult. The middlemen were taking advantage of this situation. They used to procure their produce at throwaway rates. Farmers were forced to sell their produce. The project helped them overcome this situation. पहले लोग सेठ से जाकर के पैसा लेते थे तो उनको 10% ये 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से या 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज दिया जाता था। ब्याज से पैसा लाते थे या किसी किसान को तो अपनी चीज़ भी गिरवी रखनी पड़ती थी। तो जब से परियोजना चली है तब से उनका ये इस तरह का लेन देन बंद हो गया है
और परियोजना से उनको ग्राम कोष के माध्यम से उनको ऋण दिया जाता है, जो 50 पैसे के हिसाब से दिया जाता है, जिससे उनका ब्याज का भी शोषण जो बड़े बड़े लोग करते थे वो रुका हुआ है और उनको अच्छी तरह से आजीविका चल रही है। Today they get fullest support. They're getting timely supply of farm inputs like seeds and fertilizers along with knowledge and counseling. गाढ़ा कोटा गए थे और ये पंचवटी और शहडोल में प्रशिक्षण हुआ सर। प्रशिक्षण में सर हम सबसे ज़्यादा जैविक खाद के बारे में सीखे। जैविक खाद से हम कितना उत्पादन होता है, उससे कैसा कैसा विधि है, सिंग सिल्का खाद और सिंग खाद और वर्मी कंपोस्ट और ये मटका खाद, टटिया खाद और गौ समाधि खाद और इनको सर सीखे। The result is reflected in their farm production. आजीविका तो बहुत फ़ायदा है साहब, बीज भी दे देता है फ्री में, कुछ खाद की भी मदद करवा देते हैं, कुछ लागत जो लगा थे पैसा रुपया वो भी मिल जाता है, प्रशिक्षण भी कराता है, बताता है। पहले आउट रहे साहब बाज़ार जाते रहे, बाज़ार में जहाँ 10 रुपये बिकता रहा तो आजीविका में 12-15 बिकता है। दिन भर धूप में रह के बेचत रहे। अब आजीविका खुल गए है, जब से आजीविका बेची थी टाइम से घर चल रही थी। The Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project also encouraged vegetable cultivation. In addition to this, trading platforms have been provided to vegetable growers. आजीविका परियोजना से हमें बीज मिला, शहडोल में लेकर के बेचता हूँ आजीविका के पास। पहले तो हमें जानकारी नहीं था, इसलिए मतलब कम उपलब्ध मिलता था। इस समय हमें जो कुछ मिलता है महीना में 5,000 तक कमा लेते हैं सर। Vegetable sale marts called Ajivika Fresh have been opened in the project districts. This serves twin purposes. Firstly, consumers get fresh vegetables. Secondly, farmers get best prices. आजीविका परियोजना के तहत से हमें दाना मिलता है। यहाँ अच्छी उत्पादन हम करने, पहले तो इतना उत्पादन नहीं हो पाता था और हम अब अच्छी तरह से उत्पादन कर सकते हैं और हम वहाँ आजीविका फ्रेश में ले जाकर बेचते हैं और हमें वहाँ से अच्छी आमदनी भी मिल जाती है और समय भी बचत हो जाता है। They bring vegetables to Ajivika Fresh. The practice of waiting long hours in the markets has come to an end. Their time and energy are saved. आजीविका परियोजना के तहत हमको अच्छे किस्म के उन्नत बीज मिलता है और इससे हम बीज लगाते हैं, फिर उससे हमको अच्छा उत्पादन होता है। टमाटर है, भांटा है और ये बैगन है और ये चौराई भाजी भी है और रोपा भाजी भी है और पालक भी है, धाना है और करेला भी है, तरबूज भी है, ककड़ी भी है, खीरा भी है और लौकी, कोहड़ा। आजीविका फ्रेश में ले जाकर बेचते हैं और वहाँ से हम बेचने के बाद हमको अच्छा भी कीमत भी मिल जाता है और समय की बचत भी होती है। एक महीने में 7 से 8 हज़ार करीब इनकम हो जाता है। The project has made arrangements to ensure that the vegetables reach Ajivika Fresh so that the farmers do not face any difficulty. हमने एक भोले बाबा आजीविका फ्रेश समूह बनाया था, उससे हम सब्जी बेचने लग गए। पहले गांव में वैसे फेर के बेचते थे, इसके बाद में अब दुकान से बेचने लग गए। इसमें हमको अच्छी इनकम मिलने लग गई। पहले कमाते हम 1000 रुपये महीने, 1500, और अब कमाने लगे हम 4000, 3000, 5 भी कमा लेते हैं। Ajivika Fresh has created job opportunities. Required staff has been employed in every Ajivika Fresh. हमारा जो वैसे काम है वो ग्राम सभा के माध्यम से गरीब किसानों को सब्जी उत्पादन से जोड़ना, उनकी आजीविका के लिए कृषि से जोड़ना, ये हमारा काम रहता है। हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं जिसके लिए वो सब्जी लगाएं, कृषि के लिए नए उत्पादन के लिए कार्य करें। A total of 70 persons have been engaged in the operation of 31 Ajivika Fresh. The project has built up a marketing network keeping in view market demands. Dedicated staff visits the villages to purchase vegetables and give best rates to the farmers. जो भी किसान हमारे जुड़े हुए हैं कृषक क्लब से, वो हमें फ़ोन लगाते हैं या अपने उत्पाद लेके आते हैं, जैसे सब्जी हो गया, धान, चावल, उसे हम बाज़ार पे रेट पता करते हैं, किसानों को बताते हैं। अगर किसानों को लगता है कि बाज़ार में सही दाम है तो वो वहाँ उसे
बेच के आते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर ख़रीदते हैं और उसे अपने माध्यम से बेचते हैं और उसके बाद उनके अकाउंट पे हम पैसा उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। Ajivika Fresh are established in the main markets so that buyers have an easy access. Ajivika Fresh not only sells fruits and vegetables but also paddy, millets, honey, turmeric, chili, coriander and other spices. Besides, artifacts and other decorative products made by self-help groups of artisans are also available for sale. These include woodcraft items, wooden toys, and traditional artifacts. Thus, the Ajivika Fresh also serves as a platform for the artisans to demonstrate their skills. They are also earning substantially. As many as 76,000 farmers have been associated with vegetable cultivation and trading by opening 31 Ajivika Fresh. सब्जी लगाते, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, बैगन, प्याज, लौकी, तुरैया आज ही पे दुकान पे बेचते हैं। 400-500 मिल जाता है रोज के। The farmers and the consumers both are getting benefits. हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन होता है। 15-20 लोग मिलकर के सब्जी उत्पादन करते हैं अलग अलग अपने अपने खेतों में और उसे उगा करके, जैसे भिंडी है गर्मी में, बरबट्टी है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, लौकी है, बैगन है, इस तरह से कई वैरायटी के उत्पादन करके शहडोल मार्केट में आजीविका परियोजना के लिए भेज देते हैं। पहले सर कोई साधन नहीं था तो नहीं कमा पाते थे। अब क्या है कि 15-20 हज़ार रुपया सीजन में मिल जाता है। Ajivika Fresh in project districts receives vegetables from over 800 farmers from 250 villages. पहले हम गांव में सब्जी बेचते थे, वहाँ हमको इनकम कम थी, अब कराल आ गए हम। यहाँ दुकान खोल ली जिसमें हम 4-5 हज़ार महीने मिल जाते हैं। सब सब्जी हम घर पे उगाते हैं और यहाँ के बेचते हैं। This number is steadily increasing as they are getting handsome remuneration through Ajivika Fresh. पहले हम गेहूँ, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा, तीजे करते थे तो उस फसल में 6 महीने में फसल आती, उसमें पैसा कम मिलता है। परियोजना वाले जो परियोजना चालू हुई है जब से हमें बीज देने लग गए तो हम बारी करने लग गए, तो बारी में हमको लाभ ज़्यादा है। बढ़िया बीज देते हैं, बढ़िया बारी चल रही है। 45 दिन में बारी चालू हो जाती है, रोज़ पैसा मिलता है और रोज़ हम 1000, 1200, 1500 रुपये की सब्ज़ी बेच देते हैं और हमको इनकम है। आज हमने 1 महीने के अंदर 50,000 की बाड़ी बेच चुके। Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project has brought about a positive change in the life of poor tribal families. Encouraged by the project, these farmers are scripting success stories. Their economic status has improved. Living standard is witnessing a qualitative change. पहले क्या हम खेतीबाड़ी का काम करते थे, सोयाबीन, चना, ज्वार, बाजरा इस तरह की पैदावार करते थे तो साल भर में 2 बार ही पैसा मिलता था। और जब से परियोजना आई है, जब से सब्जी उत्पादन का काम करने लगे हैं, सब्जी में भिंडी, तोरियां, लौकी, कद्दू, भट्टा इस तरह के वो पैदावार करते हैं जिससे हमको रोज़ की आमदनी होती है। हमारे गांव में भी 30-35 किसान मैंने आजीविका परियोजना से जोड़ रखे हैं। मैं आजीविका मित्र हूँ सर, तो वो इसका सब्जी का उत्पादन करते हैं और इसकी आजीविका फ्रेश की दुकान पर ला करके यहाँ बेचते हैं सर, और उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। 100-200 रुपये रोज मिल जाते हैं। The positively changing scenario in far-off tribal pockets can be attributed to a series of project initiatives designed to make agriculture a profitable business. Not long back, it was like a dream to think and talk about change. पहले हम ज्वार, बाजरा, सही सोयाबीन करते, वहाँ उपज कम होती। अब जी भिंडी, तुरैया, लौकी, आलू, प्याज और सरकारी पैदा कर परियोजना मतलब बीज दे रही है तो अच्छी पैदा हो रही है, अच्छी फड़ती है, अच्छी भिंडी आते हैं, लौकी भी अच्छी आती है, बीज अच्छा दे रही है। मतलब परियोजना दुकानदारी बाजार में हम बेचते हैं। Today, the smiling faces of farmers glowing with confidence tell a different story. Time is changing. Gloomy days have gone and a new dawn is arising. The project has made it a reality.
the poor and ignorant farmers have become entrepreneurs. They are equipped with modern knowledge of farming. आदिवासी परिवारों को संवहनी आजीविका में वृद्धि हेतु नकदी फसलों से जोड़ने के लिए श्योपुर जिले में 234 ग्रामों में 22,300 कृषकों के साथ हम सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज किसानों के पास वर्ष में 3 मौसम में फसलें किसान ले रहे हैं, खरीफ में, रबी में, जायद में, और रोज़ाना पैसा वो प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने आके उनके सिंचाई के साधनों में उपलब्धता कराई, उनको नकदी फसलों से जोड़ा। जब इतनी बम्पर मात्रा में श्योपुर कला में सब्जी उत्पादन होने लगा तो इसके बेचने के लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट तैयार हुआ आजीविका फ्रेश का। तो आजीविका फ्रेश आज श्योपुर कला में 12 आजीविका फ्रेश संचालित हैं और हमारे आसपास के सब किसान अपने यहाँ संचालित आजीविका फ्रेशों पर जाकर सब्जियों को देते हैं और वहाँ से उनका विक्रय करने के लिए हमारे पास समूह में लोग जो जुड़े हुए हैं वो उस आजीविका फ्रेश पर सब्जियों का विक्रय करते हैं। और आज प्रत्येक किसान 3,000 से 5,000 के बीच में प्रति माह सब्जियों से पैसा कमा रहा है। The poverty alleviation initiatives taken in the project areas have been included in the National Rural Livelihoods Mission, considering their success and impact. Sustainability of these initiatives has enabled the rural families to continue their journey to prosperity.